Hello students, we have completed 9 lessons and one lesson is left and we will do that lesson later on, but now we will start the revision of the lessons. 4 lessons we have already done in the first exams that was held in August. Now we will revise from lesson number 5 and अब जो रिवीजन है इसमें हम लेसन को रिवाइज करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो लेसन्स के बीच में बनते होंगे, बिकॉज जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपके जो चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस भी आएंगे और जो आपके एक्सरसाइज जो लेसन के लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो तो आते ही हैं और क्वेश्चन लेसन के बीच में से भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. सो यू मस्ट नो दैट हाउ वी कैन मेक द क्वेश्चंस एंड जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो भी लेसन के बीच में से बनाए जाते हैं. सो वी विल डिस्कस अ फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो एंड we will revise these lessons again because revision is very important. हम आगे तो lessons पढ़ते रहते हैं पर पीछे के जो lessons हैं वो भूल जाते हैं. So revision is very important. So let us start the revision of lesson number 5, that is animals. So we have discussed about different types of animals that live in different habitats. So now what is habitat? So a place where an animal lives is called its habitat. So जो ये do you know होते हैं इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे because इनमें से भी questions बन जाते हैं. And यहीं पर एक question बन गया, what is a habitat? So a place where an animal lives is called its habitat. जहां पर animal रहता है उसे हम उसका हैबिटेट बोलते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, लाइक एनिमल्स लिव इन वाटर, एनिमल्स लिव ऑन लैंड and some animals known as birds can fly in air. So these are the different habitats. लैंड पे भी रहते हैं कुछ एनिमल्स, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ हमारे फ्लाई भी करते हैं जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं. एंड फर्दर लैंड एनिमल्स के भी डिफरेंट हैबिटेट्स हो गए, जैसे एनिमल्स दैट लिव इन प्लेन्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, स्नो कवर्ड एरियाज. सो ये आगे फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन होगी जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं. सो we'll revise them one by one. So first of all, what are terrestrial animals, right? Terrestrial animals हमने पढ़े थे. So animals that live on land. Animals that live on land are called terrestrial animals. So, ऐसे animals जो land पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? Terrestrial animals. And you know that the land or earth has plains, caves, forests, deserts and snow covered areas. So different land animals live on different parts of land. तो ऐसा तो नहीं है कि सारे animals एक ही जगह रहते हैं, वो different parts पे रहते हैं different areas में. So we will discuss the animals that live in different parts of land one by one. So, do you remember the animals that live in plains? So, plains में हमारे कैसे animals रहते हैं? You can see here the examples: horse, cow, buffalo, donkey, cat, dog. These are the animals that you can see in plains. And all these land animals walk and run on 4 legs. So, ये सारे क्या है? 4 legs पे जनरली वॉक करते हैं एंड रन करते हैं.
So very simple. Animals living in plains. Now animals living in desert. So this is very important. जो animals desert में रहते हैं, they have some special features. Why special features? Because desert में जो survive करना और रहना is not very easy. It is very difficult. So जो एनिमल्स जिनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं वही वहां पर सरवाइव कर पाता है, अदरवाइज अदर एनिमल्स कैन नॉट सरवाइव इन डेजर्ट. डेजर्ट में सारे एनिमल्स नहीं रह सकते, वहां पर सिर्फ कैमल्स रह सकते हैं, स्नेक, लिजर्ड, वो भी पर्टिकुलर टाइप के, एंड सम मोर एनिमल्स दैट ओनली सरवाइव इन द डेजर्ट. व्हाई? Do you know why it is difficult to survive in desert? Because desert are usually very hot and very little and have very little water. तो desert में क्या है, बहुत गर्मी होती है due to sand. जब sun rays morning में पड़ती है during daytime, जो वहां पर temperature है बहुत ज्यादा हो जाता है. So very hot temperature is very high and have very little water. और second thing is there is a shortage of water. बहुत कम वहां पर water होता है. So that's why it is very difficult to survive in desert areas. So this is a question. एक question ऐसे भी बन सकता है. Why is it difficult to survive in desert areas? Because usually deserts are very hot and have a very little water. We will discuss these extra questions after completing revising the whole lesson, and then we will write those question answers also. Now animals living there can tolerate high temperature. So this is the first special feature जो उनमें होता है कि वो high temperature को tolerate कर सकते हैं, वहां पर सह सकते हैं. Tolerate means high temperature को सहन कर सकते हैं. That is why that they can survive over there. क्योंकि वो गर्मी को सहन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को. एंड कैमल, जब भी हम डेजर्ट का नेम लेते हैं तो हमारे माइंड में कैमल की पिक्चर जरूर आ जाती है. बिकॉज वी ऑल नो दैट कैमल्स लिव इन डेजर्ट, राइट. हम जब भी हम कैमल की बात करेंगे तो डेजर्ट याद आ जाता है हमें, और डेजर्ट की बात करते हैं तो कैमल याद आ जाता है. वाई? बिकॉज कैमल जो है वो वहां पर आपको इजीली देखने को मिलता है और वहां पर सरवाइव कर सकता है. सो व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ कैमल दैट वी हैव डिस्कस्ड? सो कैमल्स, फर्स्ट थिंग इज कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. वो बहुत दिनों तक विदाउट वाटर रह सकता है. एंड दे कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडीज. क्यों सरवाइव कर सकता है वो बहुत दिन तक विदाउट वाटर? बिकॉज वो अपने बॉडी में फूड एंड वाटर स्टोर कर लेता है, राइट. एंड दे हैव पैडेड फीट. जो उनके फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? पैडेड होते हैं, विच हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड, और जिसकी वजह से वो सैंड पे इजीली वॉक कर पाते हैं. सो दैट इज अबाउट द कैमल. कि व्हाट हेल्प्स द कैमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, it can tolerate high temperature. Second thing, it can survive without water for many days. ये बहुत दिन तक बिना वाटर के सरवाइव कर सकता है. सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेजर्ट में वाटर क्या होता है? बहुत कम होता है, इजीली अवेलेबल नहीं होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाटर के बिना जो ज्यादा दिन तक रह सकता है वही वो वहां पर सरवाइव कर पाएगा. एंड सेकेंड इज योर दे हैव पैडेड फीट. अदरवाइज क्या होता है, जो फीट होते हैं वो सैंड में अंदर धस जाते हैं, जिसकी वजह से इट इज नॉट सो इजी टू वॉक. बट ड्यू टू दिस पैडेड फीट दे कैन इजीली वॉक ऑन सैंड. सो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं कैमल के दैट हेल्प देम टू survive in the desert.
So in next video we will revise the remaining lesson. Thank you.